तो मेरे को आप ये बताइए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? There are 6 members in the Monetary Policy Committee. And who are they? 3 from the government side and 3 from the RBI side, and the chairman is the governor of the RBI. And they can be reappointed? No, they cannot be reappointed. All the members cannot be reappointed? Governor can be reappointed. Governor means? Governor means RBI governor. Can be reappointed? I think so. Other members, I think central government members will not be reappointed further. Only nominated member by central government cannot be reappointed. Otherwise, RBI governor, deputy governor, all these can be reappointed. How often does AMPC meet? It is for the legal it is mandatory to meet them for the 4 times in a year but usually they meet twice a month. That means 6 times in a year. No, according to provision, कितने बार उनको एक साल में मिलना चाहिए? At least they have to meet 4 times in a year. And quorum? Quorum is half, means 3 members. Wrong. Quorum is 4 members. हाफ तो 3 है जी, नहीं quorum का मतलब क्या होता है कि हाफ प्लस 1. गलत जवाब. Why does increasing interest rate reduce inflation? Explain. Why does increasing interest rate reduces inflation? बताइए. When the Monetary Policy Committee increases the interest rate, so in such case, due to the higher interest rate, the consumers will not take the loan. As a result, the money supply and the money in their hand will be reduced. They will demand less, and as a result, the inflation will come down due to the lower demand in the economy. So basically, रेपो रेट इंक्रीज होगा तो लोन जो है महंगा हो जाएगा. जब लोन महंगा हो जाएगा तो बोरोविंग कम हो जाएगी, और जब बोरोविंग कम हो जाएगा तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कम हो जाएगा, और जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा इकॉनमी में. मतलब कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. Does increasing repo rate reduces price of vegetables? Reduces the price of vegetables? बताइए अब. The bank will increase if RBI will increase the repo rate. In that case, the bank will also transfer it to the consumers, so the interest rate will be higher in the economy. So in such case, the bank loan will be higher. So then it will lead to बताइए. आवाज नहीं आ रही आपके. You were saying that if repo rate is higher, so it will have some impact on vegetable prices, right?
मैं बोल रहा हूँ डज इनकरेजिंग रेपो रेट रिड्यूस द प्राइस ऑफ वेजिटेबल। मेरे को आंसर दीजिए। Basically, the price of vegetables is for it. There are multiple other factors as well. So there could be very indirect relation, but not as such a direct relationship between the repo rate and the price of the vegetables. प्राइस ऑफ द वेजिटेबल रिलेशनशिप नहीं है। Not as such a direct relationship, it will be much indirect because ये price- चीज़ मैं आपको कल ही बताया था, लेकिन आप जो है ना भूल जाते हैं। यस्टरडे व्हाट आई टोल्ड यू टेल। यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है ना वो डिमांड साइड से होता है, ठीक है, डिमांड साइड से। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वेजिटेबल की प्राइस रिड्यूस करना है, तो वेजिटेबल की प्राइस बेसिकली जो है ना ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है सप्लाई साइड से। जैसे ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, क्रॉप फेलियर हो गया, सप्लाई साइड डिसरप्शन हो गया, तब ना वेजिटेबल की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जनरली कंज्यूमर साइड से एज सच इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती डायरेक्टली। तो आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है वो डिमांड साइड से होता है, लेकिन वेजिटेबल की प्राइस जनरली इंक्रीज या डिक्रीज होती है सप्लाई साइड से। जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, सप्लाई साइड डिसरप्शन हो गया। इसलिए वी कैन नॉट से नेसेसरली कि इंक्रीज रेपो रेट रिड्यूस द प्राइस ऑफ वेजिटेबल। इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं इस समय। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपसे नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा वहाँ, ये ध्यान रखिएगा। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सावधान रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय ऑयल प्राइसेस शुड RBI इंक्रीज रेपो रेट? आई रिपीट, Again, you if inflation is caused by the oil prices should RBI increase repo rate? again you said the same thing, that monetary policy will impact the demand side and the increase in the price is related to supply side. So there is not such a direct relation between those two. तो मतलब कि RBI को सोचा बैठे रहना चाहिए। If inflation is high in such case, तब RBI क्या करे? in overall economy, if the inflation is high, so RBI should take actions to reduce the inflation levels. So for that, it has to reduce the repo rate. Then it has to increase the repo rate in order to stabilize the economy and to bring down the inflation rate, overall inflation. नहीं, RBI जो है यहाँ पे RBI जो है बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि RBI ऑयल को प्रोड्यूस थोड़ी कर सकती है। बताइए, ऑयल प्राइसेस बढ़ा है क्योंकि ऑयल सप्लाई कम हुआ है, तो इसमें RBI क्या करेगी बताइए? ये तो सप्लाई साइड से ना है। RBI यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं बेसिकली। RBI बस वॉच करेगी यहाँ पे, वेट एंड वॉच, इसे ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऑयल प्राइसेस के कारण अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसका मतलब ये कि ऑयल की सप्लाई कम हुई है, तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ऑयल को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि RBI का सप्लाई साइड में कंट्रोल नहीं होता जनरली। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इम्पोर्टेंट है। फिर बताइए मेरे को कि SLR को बैंक अपने पास ही क्यों रखते हैं? अपने पास ही क्यों रखते हैं? हाँ, अपने पास ही क्यों रखते हैं भाई? इसे CRR को बैंक के पास रखते हैं, RBI के पास है, और SLR को अपने पास रख देते हैं। इसका रीज़न क्या है भाई? Basically to have a buffer to cope up with the uncertain annual risk kind of situation.
So one thing which is there is CRR. So in such case, the bank in such case with RBI one is that buffer, but other buffer is with the bank has to keep with themselves so that in case of any uncertainty or urgent situation they can utilize अरे तो those. RBI के पास रख दें, बैंक के पास क्यों रखना है? In order to take actions quickly and to reduce the time नहीं, that might be. ये रीजन नहीं है। Also they ये बताइए obviously कि getting. CRR में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है? वही कह रही थी मैं कि in this case on CRR they don't get generally interest, but in case of SLR they get the interest from the government securities and from the pool whatever they have get. हाँ, तो इसीलिए ये रीज़न है, क्योंकि CRR एज ए मैंडेटरी RBI के पास रखना पड़ता है, इसमें इंटरेस्ट रेट RBI नहीं देता। लेकिन SLR में अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है बैंक, और उसे करना ही पड़ेगा, जैसे पेमेंट बैंक, अब पेमेंट बैंक को अराउंड 75% जो SLR है उसमें ही जमा करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी को लोन तो दे नहीं सकता, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो उसका पेमेंट का सिस्टम कहाँ से आएगा? SLR से तो ही आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो SLR है पेमेंट बैंक का ही है, 75% रफली। हाँ, वहीं से इंटरेस्ट रेट कमाता है वो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, तो इसलिए ज़्यादा उनको अपने पास रखना पड़ता है वो चीज़। हाँ, बेसिकली व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? Open market operation is a quantitative tool of the RBI wherein it buys and sells the government security in order to reduce or increase in order to maintain the inflation level in the market and bring macroeconomic stability. And what is standing deposit facility? The standing deposit facility is a mechanism through which the RBI absorbs the excess fund which is with the banks and in order to manage the liquidity in the market. तो क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों रखना पड़ता है बैंक को RBI के पास है बिना कोलेटरल के? जैसे जो CRR है ना वो कोलेटरल के साथ रखा जाता है, आपको पता है ना। अगर बैंक अपना पैसा RBI के पास रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ CRR, तो RBI को कोलेटरल रखना पड़ता है बैंक के पास। लेकिन SDF के केस में ऐसा नहीं होता, RBI कोलेटरल नहीं लगता। ऐसा क्यों, मेरे को बताइए। Basically, this is for the this is used in a situation where there is excess amount of liquidity in the market. For example, during the demonetization period, this tool was used. So, in such case, without collateral, the bank is depositing its money with the bank, with the RBI. तो इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है? Yes, bank do get the interest rate on SDR, standing deposit facility. CRR में नहीं मिलता, इसमें क्यों मिलता है? बताइए। हेलो, बता रही हूँ, सोच रही हूँ क्योंकि इसमें कोलेटरल नहीं होता और CRR में कोलेटरल होता है, कोलेटरल। इसलिए अरे यार आपको बताता हूँ, भूल जाते हैं यार। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? Marginal standing facility is a quantitative tool again which is used for the overnight advances which the bank has to pay. इट इज जस्ट अपोजिट टू SDF है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या है ना कि ओवरनाइट
बैंक जमा करते हैं आरबीआई के पास, और यहाँ पे ओवरनाइट बैंक लेते हैं आरबीआई से। यही डिफरेंस है दोनों में। हाँ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। हाँ, व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर? Monetary policy corridor is the difference between the ceiling and the floor price. सीलिंग एंड द Ceiling, but it is the difference between the ceiling price. For example, MSF is something where MSF is the ceiling price and the SGF is the floor price. So the basic difference between these two. MSF is a ceiling price, no, MSF is a floor price. ये बताइए, फ्लोर प्राइस किसको बोलते हैं? कि जिसके ऊपर आप नहीं बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए एमएसपी क्या है? सीलिंग प्राइस है कि फ्लोर प्राइस है? हैं? गलत, एमएसपी सीलिंग प्राइस है। चेक कीजिए तो गूगल में, मुझे तो नहीं लग रहा कि एमएसपी सीलिंग प्राइस है। एमएसपी सीलिंग प्राइस है कि फ्लोर प्राइस है जी? हमको तो नहीं लगता है कि एमएसपी जो है सीलिंग प्राइस है। एमएसपी जो है ना एक फ्लोर प्राइस है ना। हाँ, तो देखिए एमएसपी एक फ्लोर प्राइस है। इसका मतलब जानते क्या होता है? कि आप इससे कम में जो है ना आप नहीं बेच सकते। फ्लोर प्राइस का मतलब होता है कि इससे कम में आप नहीं बेच सकते। तो जो फ्लोर प्राइस है ना वो एसडीएफ है, आप उल्टा बोल रहे हैं। और जो सीलिंग प्राइस है ना इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते। जैसे मैंने यही कहा था। आपने यही कहा था, सही। देखिए एमआरपी जो होता है, जैसे आप जाते हैं बिस्कुट खरीदने, तो जो एमआरपी होता है मार्केट रिटेल प्राइस, ये है सीलिंग प्राइस है। क्योंकि आप इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते जो उसकी एमआरपी है। लेकिन जो एमएसपी है वो फ्लोर प्राइस है। तो वैसे ही जो है ना यहाँ पे जो एमएसएफ है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सीलिंग प्राइस है। और जो एसडीएफ है ना ये फ्लोर प्राइस है, फ्लोर। हाँ, अब बात सिंपल सी भाई कि बैंक अगर आरबीआई से ओवरनाइट ले रहा है पैसा, तो आरबीआई तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, इसमें क्या रटना है? तो कहने मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो है ना एमएसएफ होता है, फिर रेपो होता है, और उससे भी कम होता है एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यही है पॉलिसी कॉरिडोर। तो फिर ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। Monetary policy transmission is the kind of mechanisms under which Hello? हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। Monetary policy transmission is a kind of mechanism under which the RBI, when RBI is reducing interest rate or increasing it, so how efficiently it is going from the RBI to the customer, and from RBI to bank and bank to the customer. So this is सिंपली से आप ये बोलिए कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू व्हिच आरबीआई पॉलिसी चेंज अफेक्ट लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट। यही है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लीजिए कि हमने रेपो को कम कर दिया है। तो जब रेपो को कम कर दिया है तो बैंक्स का फंडिंग कंडीशन में इम्प्रूव, लेंडिंग रेट्स में डिक्लाइन, लोन्स बिकम मोर अट्रैक्टिव, इन्वेस्टमेंट में राइज, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनकरेज,
यही है ट्रांसमिशन। मतलब जो आरबीआई चाहता है वही हो रहा है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। आरबीआई अगर रेपो रेट को कम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ताकि डिमांड बढ़े इकोनॉमी में। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। जो आरबीआई चाहता है अगर वैसा ही हो रहा है तो मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो रहा है। सिंपली से आपको यही लिखना है। सपोज टोमेटो प्राइस सडनली डबल, शुड आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट? अगर मान लीजिए टोमेटो प्राइस अभी 20 रुपये किलो था, अचानक 40 रुपये किलो हो गया, तो आरबीआई को क्या है पे रेपो रेट इंक्रीज करना चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही है आपके। Again, the same concept will be applied at monetary policy is the demand side. हाँ, इसीलिए मैं जान के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये वाले। यहाँ पे भी आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टमाटर की प्राइस, क्योंकि आरबीआई टमाटर को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना। टमाटर की प्राइस बढ़ी है सडनली, इसका वजह से कहीं सप्लाई साइड डिसरप्शन हुआ है, तो आप आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ाएगा तो टमाटर की प्राइस और बढ़ जाएगी। तो क्या है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट रेट? Real interest rate means it's on nominal interest rate minus the inflation. So then our real interest rate will come out, which will tell us that how real the interest rate is by adjusting the inflation. मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 7% है और इन्फ्लेशन 5% है, तो रियल इंटरेस्ट कितना होगा? 2%। 2%. हाउ डज हायर इंटरेस्ट रेट अफेक्ट सेवर्स? How does real interest rate affect? हाउ डज हायर इंटरेस्ट रेट अफेक्ट सेवर्स? अफेक्ट सेवर्स। If the real interest rate are positive, so the saver will give the interest rate certain amount, and if the real interest rate is negative nature, so the saver will lose its money. And the purchasing power will reduce of money. मतलब कि रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना जो सेवर्स कर रहे हैं, तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो पॉजिटिव रहा तो ओवरऑल, ये तो कभी ऐसा रहा नेगेटिव रहा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा, कभी तो फिर नेगेटिव मिलेगा तो उनको लॉस होगा। and what happens to housing demand when repo rate rises? When the repo rate rises, in such case, it would be difficult for the household to take the loan due to high rate, so it will not take the loan. मतलब हाउसिंग डिमांड घटेगा, सिंपली हाउसिंग डिमांड घटेगा। What happens to the stock market when RBI cuts rate? If RBI cuts rate, so due to which the companies will buy more, will take more loans from the banks, and in such case their production will increase, and which could lead to the rise in the stock market. क्या बोल रहे हैं आप? कभी जैसे if interest rate is low, so in such case the companies will take more loans from the bank, so due to which they will produce more and they will purchase machinery, so overall economic development will happen, due to which this company are performing well, so the stock market will also lead to will also show a growing trend. तो मतलब आप बोल रहे पॉजिटिव होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर यहाँ पर भी वर्क करेंगे।
जानते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या बोल रहे हैं आप? एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि स्टॉक मार्केट फॉल भी हो सकता है, क्योंकि अगर रेपो रेट डिक्लाइन हो रहा है तो ये जानते हैं किसको सिग्नल दे रहा है? इकोनॉमिक वीकनेस को। तो जब कोई इन्वेस्टर इकोनॉमिक वीकनेस को रिकॉग्नाइज करेगा तो स्टॉक मार्केट तो फॉल होगा ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है ना ये जो है ना स्टॉक मार्केट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बेसिकली बढ़ाएगा इस सेंस में क्योंकि बोरोइंग चीप हो जाएगा, तो कैश फ्लो जो है ना अच्छा मार्केट में हो जाएगा, तो इससे जो है स्टॉक मार्केट ग्रो कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर परसिस्टेंट इकोनॉमिक रेट्स डिक्लाइन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट है, तो ये जो है ना इकोनॉमिक वीकनेस का भी एग्जाम्पल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कन्फ्लिक्ट? Monetary and fiscal policy conflict yes, it could happen sometimes कैसे? because मुझे एग्जाम्पल से बताइए। चलिए एग्जाम्पल से मेरे को प्रूव कीजिए। चलिए fiscal policy government is spending है। कैन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कन्फ्लिक्ट? If fiscal policy under fiscal policy, government is spending more on the people. So in such case, the people get more money in their hands, so they will demand more. So they will demand more, and due to which the inflation will be seen in the economy, and then RBI has to work for controlling the inflation. So this is sometimes can be contrasting. If government on the one side is promoting expansionary fiscal policy, and on the other side monetary policy, the RBI has to contract the monetary policy. So it sometimes could become a conflict. नहीं तो ऐसा क्यों करेगा आरबीआई, जब उसको पता है कि गवर्नमेंट जो है ना एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी ला रही है, मतलब वो चाहती है कि लोगों के पास पैसा हो, तो फिर वो रेपो रेट क्यों बढ़ाएगा? बताइए। तो रेपो रेट इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि बाय द मतलब कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट इज डूइंग स्पेंडिंग मोर, इन सच केस पीपल विल बी हैविंग मोर मनी इन देयर हैंड्स। नहीं तो गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? आप तो ये तो देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए चूंकि रिसेशन है इकोनॉमी में। हाँ, गवर्नमेंट बेवकूफ़ थोड़ी है कि ऐसे कर देगा एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी। वो कब करेगा? जब उसे लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे आरबीआई क्यों इंटरफेयर करेगा? रिसेशन के कारण स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रहा है, तो फर्दर मोर तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन अब हो रहा है तो फिर आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ेगा ना कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। नहीं, ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, इसका एक सिचुएशन ही हो सकता है कि मान लीजिए कि इलेक्शन ईयर है और वहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट जो है ना फ्रीबीज कर रही है, लोगों को सब्सिडी दे रही है और पैसा दे रही है अपने इलेक्शन के कारण। ठीक है, अपने इलेक्शन के कारण मान लीजिए, तो इससे क्या है ना कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब चूँकि आरबीआई का काम क्या है, 4+-2 को मेंटेन रखना है, तो अब जो है ना यहाँ पे दोनों की पॉलिसी में कन्फ्लिक्ट होगा। तभी तो उर्जित पटेल जो है ना रिजाइन दे दिए थे, बोले कि भाई मैं ऐसे नहीं खेल पाऊँगा, ये चीटिंग है। गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रहा था उसे, उर्जित पटेल को, जो आरबीआई गवर्नर था। बोला लो भाई मेरा ले लो रेजिग्नेशन, जाओ, मैं नहीं खेलूँगा। तो क्या है ना कि ऐसा हो सकता है। आपको बताना है सिचुएशन भी, नॉर्मल कंडीशन में क्या है ना कि अगर गवर्नमेंट कर रहा है तो आप आरबीआई इंटरफेयर क्यों करेगा? बताइए।
लेकिन क्या है ना कि जब इलेक्शन वगैरह होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट क्या करता है, लो 5-5 हज़ार रुपये खाते में, सब्सिडी माफ, लोन माफ, तभी जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ पे अब। ये है। कैन मॉनेटरी पॉलिसी सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट है? सॉल्व ही नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली हो सकता है। तो फिर ऐसा मना नहीं करना, जैसा आप जो मना कर रहे हैं ना, ऐसा मना नहीं करना है। वहाँ आपको बताना है सिचुएशन कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना बेसिकली ये मनी की डिमांड को बढ़ा सकती है। इससे क्या है ना, बेसिकली ना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कंपनी का। जब कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नए वर्कर को हायर करेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना जी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। हाँ, पर इससे क्या है ना कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो सॉल्व नहीं होगा, पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईजी कर देगा, मतलब रेपो रेट कम कर देगा, तो कंपनी जो है ना ज़्यादा लोन ले पाएंगी बैंक से, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना। तो वी कैन नॉट से लाइक दैट ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यस या नो में आंसर नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, हमको आर्गूमेंट देना है वहाँ कि सर एक कंडीशन ये भी है और एक कंडीशन ये भी है। फिर आपको बताना है लास्ट में कि मेरे हिसाब से ये ज़्यादा होगा। ऐसे नहीं कि नो यस नो यस, इसके लिए आपको नहीं बुला रहे हैं वहाँ। वो आपका आर्गूमेंट चेक करेंगे कि कितना जो है ना अंडरस्टैंडिंग है बंदे के पास। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाउ कैन हायर इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द रुपीज़? हायर इंटरेस्ट रेट जो है ना कैसे रुपी को इफेक्ट करता है बताइए। Okay, so if interest rate is higher in the economy, so this shows that the demand of the rupees is less. If the demand of rupees is less, okay, so yeah, higher interest rate will lead to lower money supply in the economy. So rupee supplies are less. So due to this, rupee will appreciate, I guess. ये बताइए कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट है इंडिया में, तो कैपिटल इनफ्लो होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा? Higher interest होगा। Inflow होगा। इनफ्लो क्यों होगा? Interest rate is higher, so investor will come and invest in the bank. That's it. इन्वेस्ट इन द बैंक। In normal terms, they will invest in bonds or something like or something other tool. But if bank is giving higher interest rates, so they will invest in bank and will save and will do some FDI or FD or sort of that investment. So in such case, it will lead to reduction in money supply. नहीं तो उससे रुपये का क्या होगा? अप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन होगा। Then in such if money supply is reduced, so rupee will appreciate. In the market, rupee is less in numbers. So that means rupee is demand of rupee is higher, so rupee will appreciate in such case. लेकिन एक्सचेंज रेट जो है ना केवल इसी पर डिपेंड करता है क्या कि रुपये अप्रिसिएट होगा? और भी सारे फैक्टर भी है ना, तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि रुपया डेफिनेटली अप्रिसिएट होगा। इंटरेस्ट रेट हाई करने पर भी कभी कभी रुपया अप्रिसिएट नहीं होता, जो डिपेंड करता है कि दूसरे साइड इन्फ्लेशन कैसा है, सप्लाई साइड से है। आपको हर फैक्टर देखना है ना। कर सकता है पर डेफिनेटली नहीं कर सकता।
हाउ डज ए यूएस मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट इंडिया? US monetary policy would affect India positively or negatively. If US Federal Reserve increases the interest rate, so the investor will go from out, will take out their money and will invest in USA. मतलब कि यदि यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वहाँ कैपिटल इनफ्लो होगा और इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा। तो ऐसे इससे जो है ना इम्पैक्ट करेगा। सिंपली आपको बोलना है कि अगर यूएस का बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा और वहाँ कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली। ये बताइए कि वाई कांट आरबीआई सिंपली कीप इंटरेस्ट रेट वेरी लो टू प्रमोट ग्रोथ? आरबीआई जो है ना इंटरेस्ट रेट को वेरी लो क्यों नहीं करता ताकि बढ़िया लोग लोन ले फिर ग्रोथ करें? It will lead to higher money supply in the market, and that could further lead to inflationary trend. So that's why. If inflation is falling, so should RBI immediately cut rates? If inflation is falling, मान लीजिए इन्फ्लेशन मतलब कि किसी चीज़ का जो है ना प्राइस घट रही है। मान लीजिए पहले टोमेटो था 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो हो गया है। तो यहाँ पे आरबीआई को क्या करना चाहिए? कट रेट्स को कम कर देना चाहिए इमिडिएटली। inflation is going down, so inflation is going down. So in such case, it has to increase the CRR, regulate. क्यों इंक्रीज क्यों करेगा? If inflation is low, means people are not. इंक्रीज तो तब करता है जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना जी। मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन घट रहा है, मतलब प्राइस घट रही है, तो फिर सीआर क्यों बढ़ाएगा? सीआर तो घटाएगा ना। आप ही समझे क्या? प्राइस घट रही है तो जब प्राइस घट रही है तो सीआर क्यों बढ़ाएगा? रेपो रेट है। जब इन्फ्लेशन रहता है तब ना आरबीआई बढ़ाता है इंटरेस्ट रेट, ताकि जो है मार्केट में मनी का फ्लो कम हो। यहाँ तो प्राइस ऑलरेडी कम हो रही, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो कभी प्राइसेस कम होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे? प्रोडक्ट की। ज़रूरी है कि ज़्यादा डिमांड करेंगे? हो सकता है सप्लाई साइड से ऐसा हो गया हो। अब लोग जो है ना टमाटर तो नहीं खाएंगे ना जितना पहले खा रहे थे, ज़्यादा खाने लगेंगे। हो सकता है सप्लाई ज़्यादा हो गया हो इसलिए प्राइस घट गई हो। देखिए बस क्या है ना, आपको हमेशा जो है ना वन साइडेड आंसर कभी नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। और ये तो क्वेश्चन ठीक से इस टॉपिक से ध्यान रखिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इससे से मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, तो आपको एक साइड आंसर कभी नहीं देना है। ध्यान आपको हर चीज़ फैक्टर माइंड में सेट करके देना है कि सारी इसका भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। हाँ डायरेक्ट यस या डायरेक्ट नो भी नहीं करना है कि हाँ यस या नो। वो पूछेंगे डू यू थिंक, तो आपको यस नहीं करना है, आपको देना है आर्गूमेंट और फिर लास्ट में कंक्लूड करना है कि सर ऐसा होता है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ ध्यान रखिएगा। वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आप जो है ना आपको क्या लगता है, या सुनो डायरेक्ट नहीं बोलना कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए। अब बोले कि सर मेरा ये आर्गूमेंट है, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा आर्गूमेंटेटिव टाइप का होना चाहिए जवाब, ऐसा नहीं कि जो है ना बिल्कुल ऐसा। हाँ तो देखिए क्या है ना कि अगर अनियन की प्राइस घट रही है तो आरबीआई जो है ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा ही बेसिकली। लेकिन घटाएगा भी ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सप्लाई साइड की वजह से क्या है ना, जैसे हो सकता है कि अचानक जो है ना बेसिकली जो है ना उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई हो टमाटर की, तो जब टमाटर महंगा हो जाए और ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में तो लोग ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ी डिमांड बढ़ जाएगी। अब पहले आप 2 रोटी खा रहे थे, थोड़ी अब 4 रोटी खाने लगेंगे, उतनी रोटी खाएंगे।
तो क्या है कि आपको हर चीज़ को फैक्टर देखना है, सप्लाई साइड से क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड साइड से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब जाके आंसर देना है अल्टीमेटली। मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता